Good afternoon, everyone. Myself, C. Raj Chawla. Welcome all of you in this today webinar on income tax rules and forms transition 2026, litigation, appeals, and structural shifted explained. Today, our guest speaker, CA Advocate Shikhar Gargi, will discuss structural comparison income tax rules 1962 versus income tax rule 2026, understanding the new form architecture with effect from 1st of April 26, Form 99 versus Form 35, appeal before CIT appeal, Form 115 versus Form 36, appeal before ITAT, and Form 116 versus Form 36A cross objection framework. And today we have with us Advocate Manoj Sharma ji, very learned, experienced advocate on direct taxation. So I request Advocate Manoj Sharma ji to please take forward this webinar. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I am Advocate Manoj Sharma, a practicing advocate, primarily dealing with income tax matters. It is my pleasure to be the moderator for today's webinar. I warmly welcome all the participants who have joined us today for this insightful session on income tax rules and forms transition 2026, litigation appeals, and structural shifts explained. First of all, I would like to express my sincere appreciation to see Dr. Raj Chawla ji, the organizer of today's webinar. Sir, your continuous efforts to organize such knowledge sharing session for professionals are truly commendable. Because of your initiative, professionals like us get the opportunity to stay updated with the important development in tax law. Now, before we begin, let me briefly highlight the key points that will cover in today's session. Number one, structural comparison between income tax rules 1962 and the new income tax rule 2026. Understanding the new forms architecture applicable from 1st April 2026. Form 99 versus Form 35, appeal before the learned state appeal. Form 115 versus Form 36, appeal before the Honorable ITT. Form 116 versus Form 36A, understanding the cross objection framework, and important hidden changes which professional may overlook. Practical overflow changes for CA firms and professionals in their day-to-day practice. Now it is my privilege to introduce today's distinguished speaker, Advocate CA Shikhar Gargi. Shikhar Gargi is a highly respected professional with a unique combination of corporate experience, taxation expertise, and litigation practice. He is a chartered accountant as well as a US CPA. He began his professional career with Bharat Petroleum Corporation Limited and later moved into the field of tax litigation and economic offence law. He has represented clients before the Honorable ITAT and the Honorable Delhi High Court, and he is also a well-known speaker at ICI forums, appreciated for his very practical and insightful session. With his strong experience in taxation and litigation, I am sure today's session will provide all of us with valuable clarity and practical guidance on the new income tax rules and forms framework coming into force from 2026. Without taking much time, I would like to request to Advocate Shikhar Gargi to kindly take the session forward and share his valuable insight with us. Over to you, sir. Very good evening, all the participants. Very good evening. I hope that you are able to listen my voice.
सर मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राज चावला जी. This is the fifth time I have been given an opportunity to speak in this webinar and share and gain knowledge from all the participants. This is a great platform not only to provide knowledge, this is a platform to share knowledge. And this initiative, which has been taken by Chawla ji, its consistency and the way it is functioning, it is going to benefit the CA community in large and for a very long period of time. So I again thankful to Raj Chawla ji and Advocate Manoj Sharma ji for introducing me. Up we'll come to our topic, that is Income Tax Rule 2026. Income Tax Rule 2026. I'll share my PPT. I hope my PPT is visible to you. So we'll discuss what is Income Tax Rule 2026, the key transitions from 1962 to 2026 rules. What is the need for change and what are the real changes? So agenda already Raj Chawla ji and Advocate Manoj Sharma ji ने बताया. We'll discuss रूल्स में जो बेसिक चेंजेस आए, जो फॉर्म्स में बेसिक चेंजेस है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हर चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. चेंजेस क्या है इन सीआईटी अपील फॉर्म, जो कि 1/4/2026 से एप्लीकेबल है. किस तरीके से हमें फॉर्म 99 फिल आउट करना होगा, जो अभी हम फॉर्म 35 फिल आउट करते हैं. सिमिलरली किस तरीके से हमें 115 फिल आउट करना होगा विज़ फॉर्म 36 फिल करते हैं अपील फॉर IT/AT, अपील बिफोर IT/AT, एंड फॉर्म 116 विज़ फॉर्म 36A. इस एजेंडा से आपको तीन चीजें तो क्लियर हो गई होगी, आपको तीन फॉर्म तो याद हो गए होंगे. एक फॉर्म 99 है, एक फॉर्म 115 है और एक फॉर्म 116 है, जो लिटिगेशन रिलेटेड फॉर्म्स है, which will be applicable from 1st April 2026. अब क्या ऑब्जेक्ट था फॉर इनकम टैक्स रूल्स 2026? क्या चेंजेस आए, क्यों रिक्वायरमेंट थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेम फिलॉसफी से आगे बढ़ी है जो उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 2025 में चेंजेस करे हैं. कैसे चेंजेस करे हैं? लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन, वर्ड्स रिडक्शन एंड फॉर्म सिंप्लीफिकेशंस के बेसिस पे, नंबर ऑफ फॉर्म रिडक्शन के बेसिस पे नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 ड्राफ्ट हुए. पार्लियामेंट में अभी कुछ टाइम पहले एक इकोनॉमिक टाइम में आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि इनकम टैक्स रूल्स 2026 9 फरवरी 2026 को पब्लिक के लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए इंट्रोड्यूस करे गए एंड इवेंचुअली पार्लियामेंट के थ्रू उन फॉर्म्स को, उन रिफॉर्म्स को लेके आया जाएगा. बट दिस इज अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर. आप सबको पता है कि ये पार्लियामेंट के थ्रू नहीं आएगा, ये वाया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसको नोटिफाई किया जाएगा, वाया CBDT के थ्रू इनको नोटिफाई किया जाएगा. तो ये जो सजेशंस आए थे, ये आए थे 9 फरवरी 2026. और जैसे एक्ट में लास्ट 65 ईयर्स से रेगुलर अमेंडमेंट हुई है, सिमिलरली रूल्स में भी रेगुलर अमेंडमेंट हुई है. और जब रूल्स में अमेंडमेंट हुई है
तो इवेंचुअली फॉर्म्स में अमेंडमेंट हुई है। जैसे जैसे रूल्स चेंजेस होंगे वैसे वैसे फॉर्म्स चेंजेस होंगे। आप सबको पता है कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया 2025, उसमें जितने पुराने सेक्शंस थे एक्ट में, जितने 1961 में सेक्शंस थे जो अल्फा न्यूमेरिक के थे, वो इवेंचुअली रीनंबर कर दिए गए। उसी तरीके से जो रूल्स है, जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर से जो वाया 65 इयर्स में अमेंडमेंट हो के आए थे, उन सबको रीनंबर्ड कर दिया है और उन सबको स्टेट कर दिया है फॉर्म 1 से, रूल 1 से लेके नेक्स्ट रूल तक। इसके अंदर कोई 1A 2A अल्फा न्यूमेरिक रूल्स नहीं है। सिमिलरली जो फॉर्म्स थे, जैसे कि फॉर्म 3CD 3CB 3CA, ये सारे जो फॉर्म्स अल्फा न्यूमेरिक थे जो इवेंचुअली इंट्रोड्यूस हुए थे, वो अब सब के सब रीनंबर्ड हो गए हैं और वो सिर्फ न्यूमेरिक हो गए हैं। सिमिलरली रूल्स में टेबल्स एंड फॉर्मूलाज जो है वो एडेड हो गए हैं जैसे एक्ट में हुए हैं। तो टू सिंप्लीफाई, टेबल्स एंड फॉर्मूलेस को रूल्स में भी ऐड करा है एंड जितने रिडंडेंसी थी रूल्स में उनको एलिमिनेट करा है। पॉलिसी चेंज अगर हम देखें तो 2025 एक्ट कोई पॉलिसी चेंज नहीं थे, बट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में पॉलिसी चेंजेस है। वो कौन से पॉलिसी चेंजेस है? वो वही है जो फाइनेंस एक्ट 2026 में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो वाले सारे पॉलिसी चेंजेस है। वो ऑब्वियसली पॉलिसी चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हुए हैं 9 फरवरी 2026 को आफ्टर बजट। जो इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 21 अगस्त 2025 को बिफोर बजट। तो उसमें वो पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करे हैं, सिर्फ लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन का इनका प्रायर मोटिव था। और अब जो फॉर्म्स आए हैं, अब जिस तरीके के फॉर्म्स आए हैं, उन फॉर्म्स में जो पहले मैनुअल फीडिंग करनी होती थी, जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती थी कि मैनुअल फीडिंग करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टैक्स प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देगा डिपार्टमेंट को, उसको रिलेटिवली चेंज करने की कोशिश करी। उसमें ऑटोफिल कैपेबिलिटीज डाली गई है एंड डिपार्टमेंट ये चाहता है कि उनके पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। दे डो नॉट रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस, दे ओनली रिक्वायर tax professional to help them for reconciling those information. If there is a gap in reconciliation those information, then that should be informed by chartered accountant via return filing and form filing. So obviously जो नए फॉर्म होंगे उनमें लेस एरर प्रोन होंगे और उसमें डाटा वैलिडेशन के फील्ड होंगे। अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न की बात करूं तो अभी जैसे इनकम टैक्स रिटर्न है, हो सकता है वो 139(9) में डिफेक्टिव होके आ जाए। उस तरीके से चांसेस आर लेस कि अब रिटर्न्स डिफेक्टिव हो, बिकॉज एरर प्रोन होने के चांसेस कम होंगे। डाटा वैलिडेशन ऑलरेडी फॉर्म्स में ज्यादा होंगे, तो अगर कुछ उसमें एरर आएगी वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म हो जाएगी। तो नए रूल्स का जो पर्पस आया है वो ये आया है कि इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी एंड मोर फोकस ऑन रिकंसाइलिंग द इंफॉर्मेशन विच ऑलरेडी डिपार्टमेंट हैज। अब दो तीन चीजें इन फॉर्म्स में आई है। एक मैंने आपको पहले ही बताया, वो ये आया कि लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशंस करी है रूल्स में, फॉर्म्स में भी लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशंस करी है। और एक टेबल इस स्लाइड में दे रखी है जो ये बताता है कि पहले कितने रूल्स थे। पहले 511 रूल्स थे 1962 रूल्स में, 2026 में 333 रूल्स है। सिमिलरली जो डिफरेंट तरीके के फॉर्म्स थे पहले एक्ट में, वो 399 थे, जो अभी हो गए हैं 190। तो लेस देन हाफ हो गए हैं फॉर्म्स। तो इतना बड़ा जो फॉर्म्स का इवेंचुअली अमेंडमेंट हो के वो इतने बढ़ गए थे, उनको कोशिश करी गई है कि उसमें कंसाइज किए जाए
और उनकी मर्ज किए गए। अब मैं ये चाहता हूं, मैंने लास्ट टाइम आपको इनकम टैक्स रूल्स के बारे में बताया था कि क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हमें याद रखने इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इस बार ही मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है जो हमारे रेगुलर यूज के फॉर्म्स है जो आप लोगों को याद करने हैं, जिससे कि आपका जो ट्रांजिशन है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में उसकी जब एप्लीकेशन होगी वो रिलेटिवली काफी इजी हो। तो मैं ये चाहता हूं कि ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है जो कि आप नोट डाउन करिए इन पीस ऑफ अ पेपर, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपको वो फॉर्म नंबर याद नहीं होंगे, और जब तक आपको फॉर्म नंबर याद नहीं होंगे तब तक आपको वो ईज नहीं आएगी इन ट्रांजिशन। आप कभी ना कभी पुराने फॉर्म्स, पुराने रूल्स, पुराने सेक्शंस को ही रिमेंबर करते रह जाएंगे। तो एज अ टैक्स प्रोफेशनल हम लोग जितनी जल्दी नए फॉर्म्स को, नए रूल्स को, नए सेक्शंस को याद कर ले, उनको एक्लेमेटाइज कर ले, तो आधी आप जंग जीत जाएंगे ऑलरेडी। क्योंकि पॉलिसी चेंजेस नहीं है, मेजर जो चेंजेस है वो रीनंबरिंग के है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस वेबिनार के थ्रू आप मेजर मेजर फॉर्म्स नंबर जो है वो याद कर लेंगे, जिससे कि यू विल फील मच कॉन्फिडेंट आफ्टर अ मंथ। जब ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा तब आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी फॉर्म रूल्स आते होंगे। तो अभी आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, एंड मैं आपको ये पीपीटी शेयर करूंगा। बट पीपीटी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वेबिनार का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो बेटर है आप नोट डाउन करें, एंड जब आप नोट डाउन करेंगे तभी आपको नए फॉर्म्स याद होंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं। जो ओल्ड फॉर्म थे, जो ओल्ड एक्ट में फॉर्म्स थे, आप सबको पता है टैक्स ऑडिट के लिए होता था 3CA, 3CB एंड 3CD। 3CA, 3CB एंड 3CD। 3CA उसके लिए होता था जब ऑडिट इन एनी अदर लॉ रिक्वायर्ड है, तो वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को या टैक्स प्रोफेशनल्स को जो सेक्शन 288 में एलिजिबल है वो लोगों को ऑडिट ऑब्जर्वेशंस देनी होती थी। 3CB जहां पे एनी अदर लॉ में ऑडिट नहीं होना वो 3CB होता था, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 3CD में होता था। ये तीनों अब एक ही फॉर्म बन गए हैं, फॉर्म नंबर 26। फॉर्म नंबर 26 अब आपको याद करना है कि किस तरीके से आपके नए रूल्स में फॉर्म 26 की ही इंपॉर्टेंस होगी। मैंने यहाँ पे लास्ट एक वेबिनार में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द चेंजेस इन फॉर्म 26। स्कैन कर रखा है ये तुमने? तो स्कैन किया आपको हुआ है? फॉर्म 26 नोट डाउन कर लेना है। जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट होती है वो हम पहले बोलते थे 3CEB, उनकी ड्यू डेट भी अलग होती थी। उसका नया फॉर्म आपको याद रख लेना है, फॉर्म 48। ये जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक सिर्फ सुन के या बाद में पीपीटी देख के, बाद में पीपीटी 90% देखेंगे भी नहीं और वो आपको याद नहीं हो पाएगा। तो फॉर्म 26 मैंने आपको बताया टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए, एंड ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के लिए फॉर्म 48। सिमिलरली मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है या यूटिलाइज करना है तो उसके लिए फॉर्म 29 भी हम फिल आउट करते थे, जो अब हो गया है फॉर्म 66। मैट के प्रोविजंस के लिए, मैट की एडजस्टमेंट के लिए फॉर्म 29 बी की जगह हो गया फॉर्म 66। एंड सिमिलरली एडजस्टेड टोटल इनकम एएमटी वाले जो प्रोविजंस है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होते थे, वो सेक्शन 20 रूल 20 फॉर्म 29 सी से हो गया फॉर्म 67। तो आपको रीनंबरिंग याद रखनी है। फॉर्म 26 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के लिए फॉर्म 48, मैट के प्रोविजंस के लिए फॉर्म 66, एएमटी के प्रोविजंस के लिए फॉर्म 67।
जितनी जल्दी हम लोगों को ये प्रोविजंस याद हो जाएंगे उतनी अच्छी तरीके से हमारी ट्रांजिशन होगी। सिमिलरली लिटिगेशन रिलेटेड की जो फॉर्म्स है, जो सीआईटी अपील्स के, इसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने एजेंडा में आपको बताया था 3 फॉर्म्स। जो लिटिगेशन रिलेटेड फॉर्म्स हैं, फॉर्म 35 सीआईटी अपील में आप लोगों ने, कईयों ने भरी होगी फॉर्म 35, वो अब हो गया इवेंचुअली फॉर्म 99। आईटीएटी में फॉर्म 36, वो अब हो गया है फॉर्म 115। एंड क्रॉस ऑब्जेक्शंस के लिए फॉर्म 36A वो हो गया फॉर्म 116। क्रॉस ऑब्जेक्शंस क्या होता है? कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्रॉस ऑब्जेक्शंस होते क्या है? क्रॉस ऑब्जेक्शंस का क्या पर्पस होता है? क्रॉस ऑब्जेक्शंस आप में से कईयों ने क्या पता फिल आउट करे हो या नहीं करे हो। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि एक एसएससी ने अपील फाइल करी सीआईटी अपील में, और सीआईटी अपील में अपील फाइल करके वो जीत गया वो अपील, अब उसके बाद आईटीएटी में डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है, जो कि सेकंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। आईटीएटी में अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है और उसके उसके एसएससी ग्राउंड्स ऑफ अपील फाइल करना चाहता है, तो उस चीज के लिए क्रॉस ऑब्जेक्शंस की फाइलिंग होती है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, एक सेक्शन 148 का किसी को नोटिस आया, एक रीअसेसमेंट का नोटिस आया, और एसएससी ने, असेसिंग ऑफिसर ने अल्टीमेटली सेक्शन 147 में उसकी डिमांड निकाल दी। जब उसने डिमांड निकाल दी, एसएससी ने उसके अगेंस्ट में आईटीएटी में अपील करी। एसएससी उस आईटीएटी में जीत गया ऑन मेरिट्स। सॉरी, एसएससी ने सीआईटी में अपील करी एंड सीआईटी में एसएससी जीत गया ऑन मेरिट्स। उस मेरिट्स के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट ने आईटीएटी में अपील करी, बट एसएससी ये चाहता है कि जो लीगल ग्राउंड है कि मेरा 148 क्वैश हो जाना चाहिए, वो सीआईटी अपील्स ने अनहर्ड कर दिया। उसने सिर्फ मेरे को मेरिट्स पे रिलीफ दिया, तो उसके लिए वो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करेगा आईटीएटी में कि मेरे जो लीगल ग्राउंड्स थे उसको आप सुन लीजिए। या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले 147 में तीन तरीके की डिमांड निकली हुई है, डिमांड ABC। डिपार्टमेंट ने पार्शियल अपील दिया, सीआईटी अपील्स ने पार्शियल रिलीफ दिया, उसने पार्शियली अलाउ कर दिया। डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में अपील में गया, एंड फॉर जो पार्शियल रिलीफ था उसके लिए एसएससी ने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया आईटीएटी में। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज के लिए क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, जो 116 फॉर्म नंबर हो गया है। यह है लिटिगेशन रिलेटेड फॉर्म। आई होप ये आपको तीनों फॉर्म नंबर अब याद हो गए होंगे, 99, 115 एंड 116। इसी हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, जो डेली डिस्कशन में आएंगे, वो है टीडीएस एंड टीसीएस फॉर्म्स। फॉर्म 16 रेगुलर जो लोग सैलरी की रिटर्न भरते हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, फॉर्म 16 अब नए एक्ट में उसे बोला जाएगा फॉर्म 130। फॉर्म 16A जो नॉन सैलरी टीडीएस का है, वो हो गया 131। फॉर्म 24Q जो टीडीएस की सैलरी की रिटर्न भरते हैं, उनके लिए हो गया है फॉर्म 138। फॉर्म 26Q टीडीएस की जो रिटर्न भरते हैं नॉन सैलरी लेकिन डोमेस्टिक रिटर्न्स, उसका हो गया फॉर्म 140। ये प्लीज आप लोग नोट करते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं।
और ट्रांजिशन में सुपर डुपर हेल्प होगी इनसे। फॉर्म 16 हो गया फॉर्म 130, फॉर्म 16A हो गया 131 फॉर्म। फॉर्म 24 क्यों? आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग ये भरते होंगे सैलरी की, टीडीएस की रिटर्न, जो हो गया 138। फॉर्म 26 क्यू ये हो गया है फॉर्म नंबर 140। फॉर्म 27 क्यू जो कि टीडीएस है नॉन रेजिडेंट के लिए, जो सेक्शन पहले 195 था, वो हो गया है फॉर्म 144। फॉर्म 27 EQ टीसीएस के लिए जो हम फाइल करते हैं, टीसीएस की फाइलिंग होती है फॉर्म 27 EQ में, जो हो गया फॉर्म 143। एक फॉर्म है फॉर्म 15G, फॉर्म 15H लोअर डिडक्शन के लिए या नो डिडक्शन डिक्लेरेशंस जो हम देते हैं बैंक्स को, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे नॉन सीनियर सिटीजन हो गया, उसका नया फॉर्म नंबर बन गया फॉर्म 121। लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए, नील डिडक्शन नॉन रेजिडेंट के लिए फॉर्म 13 जो होता है वो हो गया फॉर्म 128। फॉर्म 26AS वो हो गया फॉर्म 168। तो 26AS हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं फॉर्म, वो इवेंचुअली हो गया है फॉर्म 168। तो आपको ये सारे के सारे फॉर्म नंबर याद रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपका ट्रांजिशन सुपर डुपर इजी हो जाए, आपको फील ही नहीं होगा कि मेरा ट्रांजिशन हो गया। और अगर आप 1 अप्रैल 2026 जो अभी आने ही वाला है उनसे पहले आप इन सब चीजों से एक्लेमेटाइज होंगे, तो आपके पास बाकी सारे प्रोफेशनल्स से एज होगी। और यही हमारा पर्पस है इस वेबिनार अटेंड करने का, कि आपके पास एज हो बाकी प्रोफेशनल्स से। तो ये सारे फॉर्म्स है टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड। 26AS फॉर्म जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो फॉर्म 168 हम बोलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके ऑफिस में ये पीपीटी दिखाइए और ऑफिस में ट्राई कीजिए आपस में जो अगर आप बात करें वो आप नए फॉर्म्स को लेकर ही बात करें, नए फॉर्म नंबर को लेके ही बात करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, जिससे कि आपको ट्रांजिशन बहुत इजी हो। इंटरनेशनल रेमिटेंस जो करते हैं हम लोग, इंटरनेशनल रेमिटेंस के लिए फॉर्म 15 CA-CV भरते हैं, वो हो गया है नया फॉर्म 145 एंड 146। एक फॉर्म 3C-EB भरते हैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के बारे में, ये पहले भी मैंने आपको बताया, ये हो गया फॉर्म 48। ट्रांसफर प्राइसिंग का फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया 3C-EB, ये हो गया फॉर्म 48। जो 15 CA-CB है वो हो गया 145 146। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है फॉर्म 26, फॉर्म 26 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो कि फॉर्म 3CD था, अब आज की डेट में जो नया रूल्स है उसमें फॉर्म 26 में हमें जो भी हमने क्लाइंट के फॉर्म 145 भरे हैं उनकी डिटेल्स डालनी है। अभी हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 15 CA की डिटेल्स नहीं डालते थे, बट आगे वाली जो आने वाली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है फॉर्म 26 में, उसमें हमें नए फॉर्म 145 की डिटेल्स डालनी है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो इंपॉर्टेंट चेंज है। तो फॉर्म 145 से आपको एक्लेमेटाइज होना है। पैन रिपोर्टिंग के लिए, पैन एंड रिपोर्टिंग पर्पस के कुछ कुछ जो फॉर्म्स है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। इंडिविजुअल के केस में पहले फॉर्म 49A होता था पैन अप्लाई करने के लिए, जो कि हो गया फॉर्म 93। ऐसे नॉन रेजिडेंट का प्लान अप्लाई करने के लिए फॉर्म 49AA होता था, जो हो गया फॉर्म 95। टैन के लिए फॉर्म 49B होता था, वो हो गया फॉर्म 134। एसएफटी ट्रांजेक्शंस, सर्टेन पर्संस को एसएफटी ट्रांजेक्शंस लेनी होती है, डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देनी होती है, उसका फॉर्म होता था 61A, जो हो गया फॉर्म 165। एसएफटी ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है,
आज के सिनेरियो में कि ज्यादातर लोगों को 165 फॉर्म अब भरना पड़ेगा। जो भी बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, स्टॉक ब्रोकर कंपनी है, सबको ये सारे की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर्म 165 की। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस जो फॉर्म 26 3CD वाला जो रिपोर्टिंग है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें एज अ टैक्स ऑडिटर को, हम लोगों को, प्रोफेशनल्स को, जो भी 165 जो SFT इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या गलत दी है, उसकी डिटेल्स हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है। उससे क्या होगा, हमारी ही डिटेल से जो पहले सेक्शन होता था 271 FAA, जो कि 50,000 की पेनल्टी लगाता था अगर SFT इंफॉर्मेशन नहीं दी या रॉन्ग दी ईच डिफॉल्ट पे। तो अब एज अ टैक्स ऑडिटर को वो इंफॉर्मेशन देनी है फॉर्म 165 की इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 26 में। अगर हम इंफॉर्मेशन देंगे तो डिपार्टमेंट विल इम्पोज पेनल्टी ऑन आवर क्लाइंट। ऐसे ही CRS की रिपोर्टिंग होती थी, सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग सिस्टम्स होते थे। ये एक अलग डिफरेंट तरीके की रिपोर्टिंग है। जो 61B में होता था फॉर्म, वो 166 हो गया है। ये सारी रिपोर्टिंग्स आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अब डालनी होगी फॉर्म 26 में। तो ये सारे फॉर्म नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, नॉट फॉर द पर्पस कि ये कभी यूज आए, बट ये आगे चल के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इसकी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी पड़ेगी। तो यू शुड बी एक्लेमेटाइज विद फॉर्म 165 की होता क्या है फॉर्म 165। जितनी इजीली आपकी मेमोरी इन चीजों में होगी, तो आगे चल के जब आप ये फॉर्म्स भरेंगे, जब आपको इन फॉर्म्स को यूज करना होगा, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट नहीं रहेगा। आप इनर आप में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, ये मुझे पता है इसके बारे में। तो आपके लिए वो फिल आउट करना रिलेटिवली काफी इजी होगा। जिन लोगों का ट्रस्ट का काम है, आजकल चैरिटेबल ट्रस्ट ज्यादातर लोगों ने रिन्यूअल कराई होगी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स है, उन लोगों ने अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट को रिन्यूअल कराया होगा। उनके सर्टेन फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फॉर्म 10A पहले जो था प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का, वो हो गया 104। फॉर्म 10AB जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था, वो हो गया है फॉर्म 105। फॉर्म 10AC जो ऑर्डर था प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के लिए, वो हो गया 106। सिमिलरली जो फॉर्म 10AD था, वो हो गया 107, जो फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के पावर है CIT एग्जाम्शन के पास। और 10BD था फॉर्म जिसमें डोनेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती थी, वो हो गया 113। तो 104 आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए है। फाइनल रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन के लिए 105 है। जो ऑर्डर मिलेगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का, वो 106 है। जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर मिलेगा, वो 107 है। और जो डोनेशन स्टेटमेंट है, जो डोनी देगा, जो डोनी से रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन देनी है, वो 113 है। ये सारे ट्रस्ट के फॉर्म्स है। तो मैंने आपको जो मेजर फॉर्म्स थे, जो कि डेली के यूज होने वाले फॉर्म्स थे, उनकी मेरा पर्पस था कि आपको नंबरिंग लिखवा दूं, आपको नंबरिंग याद करवा दूं कि ये नंबर्स है। फॉर्म 26AS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अब हो गया फॉर्म 168। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है इसमें, वो 168 हो गया है, और आगे चल के आपको 168 ही बोलना है। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको अभी से ही अपने ऑफिस में 168 के बारे में बोलना है। अब बिफोर मैं आगे बढ़ूं, मैंने एक बारी लास्ट टाइम आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताई थी। वो था विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म 26, जो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है। उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में सर्टेन क्वेरीज आई थी। मैं चाहता हूं कि उस वाली क्वेरी को आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ
ऑल ऑफ अस, क्योंकि वो क्वेरी अगर डिस्कस होगी तो उससे हम सबका बेनिफिट होगा। क्या क्वेरी थी वो ये थी कि अभी जो हम फॉर्म 3CD भरते हैं, अच्छा उससे पहले एक रूल में आपको चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। पहले एक एक रूल होता था, वो रूल होता था रूल 6F। रूल 6F होता था जो कि बताता था मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कंपल्शन होती थी सेक्शन 44 AA में, जो कि बताता था कि इन सर्टेन सिचुएशंस, इन कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेट करना कंपलसरी है। वो गवर्न होता था रूल 6F से। रूल 6F बताता था कि कौन कौन से लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। वो चेंज हो गया नए रूल में, रूल 46। अब जो रूल 46 है उसमें जो मेजर चेंज आया वो ये आया कि पहले पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअल आप मेंटेन करते थे, डिजिटल मेंटेन करना वाज नॉट कंपलसरी। नाउ इन 2026 रूल्स डिजिटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना कंपलसरी हो गया। जब तक मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्शन था तो उसी हिसाब से फॉर्म 3CD में जो लोगों ने फॉर्म 3CD भरा होगा, आई एम होप कि सबने, ये ज्यादातर लोगों ने फॉर्म 3CD भरा होगा। फॉर्म 3CD में क्लॉज 11 होता था जिसमें हम एक इंफॉर्मेशन भरते थे। वो इंफॉर्मेशन क्या भरते थे? वो भरते थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्लेस कहां पर है क्लाइंट की। क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्लेस कहां पर है। अब उसमें चेंजेस आए हैं, उस फॉर्म में चेंजेस आए हैं। उस फॉर्म में क्या चेंजेस आए हैं कि आगे चल के आपको ये बताना पड़ेगा कि जिस जगह पे रखे हुए हैं, कि अब मैंडेटरी बताना पड़ेगा कि वो जो डिजिटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहाँ पे रखी हुई है। वो कैसे बताओगे? वो चीज कैसे बताएंगे? वो हमें क्लॉज 14 में नए रूल्स में फॉर्म 26 में पार्ट बी ये बोलता है कि आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा मेंटेन हो रहा है। हमें एज अ टैक्स ऑडिटर को ये बताना पड़ेगा कि क्लाइंट कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहा है। दिस इज द न्यू रिक्वायरमेंट जो पहले कभी नहीं थी। एक ये बताना पड़ेगा कि आपका जो डाटा है उसका बैकअप कहाँ पे हो रहा है। क्या उसका बैकअप इंडिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंडिया में हो रहा है तो उसके बैकअप की लोकेशन हमें बतानी है। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, उसमें ये बताना है कि जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें स्टोरेज हो रखी है अकाउंट्स की क्लाइंट के, उसकी लोकेशन और उसका आपको क्लाइंट के सिस्टम का आईपी एड्रेसेस लिखने हैं कि कहाँ कहाँ पे उस क्लाइंट के सिस्टम के आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस है, और वो हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है। तो ये वैसे 3CD या फॉर्म 26 फिल करने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्लाइंट की होती है। अफर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को करना होता है उसे 3CA 3CB भर के। बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में जितने भी फॉर्म 3CD है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद ही भरता है। कोई भी क्लाइंट फॉर्म 3CD नहीं फिल आउट करके देता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भरता है। अब इसमें मेरे से कुछ कुछ लोगों के डाउट आए थे कि सर आपका क्या इसमें ओपिनियन होगा कि कैसे हम आईपी एड्रेसेस भरेंगे क्लाइंट के। क्योंकि काफी बारी ऐसी सिचुएशन होती है, ज्यादातर ऐसी सिचुएशन होती है कि क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा होता है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में रखी होती है स्टोरेज, क्लाइंट के खुद के पास नहीं होती। तो उस सिचुएशन में हम आईपी एड्रेसेस कैसे देंगे? तो देखिए ये इतना नैनसेंस चीज है। लोगों की क्वेरी आई कि आप कैसे आईपी एड्रेसेस देंगे जब हमारे अपने सिस्टम में उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है।
तो कैसे हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखे? तो मेरा सिंपल सा इसमें जो ओपिनियन रहेगा वो ये रहेगा, सबसे पहला तो दिस इज जस्ट अ पॉसिबल ओपिनियन फ्रॉम माय साइड। मुझे नहीं पता कि आगे चल के किस तरीके से ये प्रैक्टिकली यूज होगा, क्योंकि अभी इतना नैनसेंट है कि किसी ने इसको प्रैक्टिकल यूज के बारे में नहीं सोचा है। अब मेरा इसमें ये ओपिनियन रहेगा कि पहले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद अपने सिस्टम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे, काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंटेन कर रहे थे, जो कि वैसे गलत था, प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से गलत था, लेकिन फिर भी वो मेंटेन कर रहे थे। और वो जो प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है अंडर ओल्ड 3CD मैं बोल रहा हूँ क्लॉज 11 में, वो क्लाइंट का ही एड्रेस डालते थे। उसमें क्लाइंट का ही एड्रेस डालते थे, वो कोई भी सीए फर्म अपना एड्रेस नहीं डालता था। सिमिलरली आज की डेट में जो आईपी एड्रेस है वो क्लाइंट का ही डलेगा, चाहे उसके में बुक्स मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो प्रैक्टिकली जो सिचुएशन है, मेरे अकॉर्डिंगली आईपी एड्रेस कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना नहीं डालेगा, इसमें आईपी एड्रेस वो क्लाइंट का ही डालेगा, चाहे वो अपने में मेंटेन करके रख रखा हो। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन एक लोगों का ये आता है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर हम इसमें फंस जाएंगे, मान लीजिए कि क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है, क्लाइंट का आईपी एड्रेस में टेली सॉफ्टवेयर ही नहीं है, इससे ऊपर वाले बी में हम लिख रहे हैं कि वो कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए टेली कर रहे हैं, बिजी कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग या सैप कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं, लेकिन उस आईपी एड्रेस में वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मेरे अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्लाइंट को एडवाइस करना है कि चाहे वो पायरेटेड वर्जन या किसी भी वर्जन में, उस अपने सिस्टम में जिनके पास है वो बहुत अच्छी बात है, बट जिनके पास नहीं है उनको अपने सॉफ्ट सिस्टम में वो डालना पड़ेगा। बेटर है वो डाल ले तो अच्छी चीज होगी फॉर टैक्स प्रोफेशनल, उसके लिए साइन करना इजी होगा। अगर वो नहीं डालेगा तो टैक्स प्रोफेशनल को रिलेटिवली डिफिकल्टी आएगी। सी ये सारा का सारा बहुत ज्यादा ग्रे एरिया है। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग माई पॉसिबल सोल्यूशन टू इट। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डालना होगा क्लाइंट को, और आईपी एड्रेस क्लाइंट का ही डालना होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन आया कि सर अगर क्लाइंट अभी भी मैनुअल ही मेंटेन करे जा रहा है, मैंडेटरी प्रोसेस वो नहीं बना रहा, उसके पास सिस्टम नहीं है, तो आईपी एड्रेस किसका डाले? तो मेरे अकॉर्डिंगली देखिए, सारी चीजें ऐसा नहीं है कि भाई टैक्स प्रोफेशनल को ही लेनी है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट योर क्लाइंट कि आप अगर एलिजिबल है अंडर रूल 46 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, तो आपको कंप्यूटर लेना ही पड़ेगा, आपको उस कंप्यूटर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डालना ही पड़ेगा। तो ये आपके टैक्स प्रोफेशनल के ऊपर है कि उनको कन्विंस करवाना कि नहीं, अब आप मैनुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर पेनल्टी लगने के चांसेस पूरे पूरे है। रूल 46 में मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एक तरीके से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ही नहीं रहे हैं। आपको ये कन्विंस करना पड़ेगा अपने क्लाइंट को कि आपको डिजिटल सिस्टम लेके रखना है, आईपी एड्रेस क्लाइंट का डालना है, उसके अंदर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट को फोर्स करना है कि आप बाय कीजिए, उनको रिकमेंड करना है कि आप बाय कीजिए, वो यूज करे, एंड देन आपको ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 26 भरना है। और यहाँ पे अगर किसी क्लाइंट ने मैंडेटरली डिजिटल अकाउंट्स नहीं बना रखे,
अगर उसके मैंडेटरली डिजिटल अकाउंट्स नहीं बन रखे, देन इट बिकम्स अ वेरी वरीसम सिचुएशन, बिकॉज अब इतना सिंपल नहीं रह गया है फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स कि जो हम पहले 3C A या 3C B में ऑब्जर्वेशन डाल देते थे वो ऑब्जर्वेशन डाल दे। क्यों नहीं डाल पाएंगे अब ऑब्जर्वेशन? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि अब जो नई तरीके की ऑब्जर्वेशंस है, दोज आर नॉट वेरी सिंपल। वो ऑब्जर्वेशन इज नॉट वेरी सिंपल बिकॉज अब जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आपको इफेक्ट भी डालना है कि इससे नेट इंपैक्ट कितना आ रहा है, कितना इन ऑब्जर्वेशन से आपको नेट इंपैक्ट आएगा, और उस हिसाब से आपको आगे अपना बढ़ना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जो थी वो कहां पर है, ऑडिट ऑब्जर्वेशन में जो हमें पहले डालनी होती थी उसमें हमें सिंपल ये डालना होता था कि रिमार्क्स अपने डालने होते थे, क्वालिफिकेशन डाल दिए, रिमार्क्स डाल दिए। लेकिन अब जो फॉर्म 26 है उसमें मैंने आपको ये बात लास्ट टाइम भी बताई थी कि फॉर्म 26 में तब हमने इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करी थी। अब हम बहुत ही बेसिक सी डिस्कशन करके बस पॉइंट टच अप करके मैं आगे बढ़ रहे अपने मेन टॉपिक्स पे। तो जो ऑब्जर्वेशन थी उनको अब हम सिंपली नहीं बच सकते, अब हम सिंपली नहीं बच सकते हैं। अब हमें उसमें इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डालना होगा और उसका नेट इंपैक्ट डालना होगा कि कितना नेट इंपैक्ट है। तो अगर किसी पर्सन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिजिटल नहीं बना रखी तो आपको ऑडिट ऑब्जर्वेशन डालनी होगी और उसका इंपैक्ट डालना होगा। और मुझे जो लगता है कि आप इसमें जितना फाइनेंशियल इंपैक्ट डालेंगे, जब ये रिटर्न प्रोसेस होगी उतनी एडिशन होके आ जाएगी इंटीमेशन है 143(1) में। तो एज अ टैक्स ऑडिटर आपको अपने क्लाइंट को एजुकेट करना है कि वो डिजिटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे और जो क्लॉज 14 में जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो पाए। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम की अपने वेबिनार से कुछ इसमें पॉइंट टचअप किया जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट था और जो काफी लोगों की क्वेरी आई उसको मैंने टचअप किया। अब हम आते हैं कि क्या डिफरेंस है फॉर्म 35 एंड फॉर्म 99 में, जो कि अपील टू सीआईटी है। अपील टू सीआईटी के लिए क्या डिफरेंसेस है? तो सबसे पहला जो इसमें डिफरेंस है, आपको फॉर्म दिखा के पता लगेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस इसके अंदर आए हैं। सबसे पहला जो इसमें डिफरेंसेस है वो है फॉर्मेट का, कि किस तरीके का फॉर्मेट है। देखिए ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है कि जो पुराना फॉर्मेट बना हुआ था फॉर्म 35, फॉर्म 36, फॉर्म 36 से, वो सारा बना हुआ था मैनुअल फाइलिंग के हिसाब से। अब जो नए फॉर्म्स हैं फॉर्म 99, फॉर्म 115, फॉर्म 116, ये फॉर्म्स डेवलप हुए हैं फॉर डिजिटल फाइलिंग पर्पस। ऐसा नहीं है कि मैनुअल नहीं फाइल हो सकता, मैनुअल अभी भी फाइल है IT/AT में, बिकॉज देयर आर 63 IT/AT ऑल ओवर द कंट्री, सिर्फ मेट्रोज में नहीं है। एंड पीपल आर फाइलिंग मैनुअली देयर अपील्स। तो लेकिन जिस तरीके से फॉर्म की स्ट्रक्चरिंग हो रखी है 115 की या फॉर्म 99 की, उस स्ट्रक्चरिंग से ये पता लगता है कि ये इन्होंने फॉर्म बनाया है फॉर द पर्पस ऑफ डिजिटल फाइलिंग। देखिए ये है फॉर्म 99। ये फॉर्म 99 के अंदर जो पहले पहले टोटल 17 क्लॉजेस थे फॉर्म 35 में, अब वो क्लॉजेस आपके बढ़ गए हैं और वो क्लॉजेस हो गए 29। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी जो नया फॉर्म है वो मच बेटर है देन फॉर्म 35। क्यों मच बेटर है? बिकॉज इस फॉर्म के अंदर काफी चीजें ऑटो पॉपुलेटेड होगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 99 के पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि डिटेल जो है कॉन्टैक्ट डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड होगी। और
काफी और सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड होगी। इसमें लिखा है 1 से लेके 10 तक ये सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगी। नेम, एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब कुछ ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा। ये सारी हमें पुराने फॉर्म्स में मैन्युअली फिल आउट करनी होती थी, जो कि अब ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा। सेकेंड चीज ये है कि फॉर्म 99 में इन्होंने स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में अगर हम देखें 99 में, तो ए से लेके जी पार्ट तक इन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक अपील डिटेल है, पेंडिंग डिटेल्स है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड एडिशनल एविडेंसेस है। तो ये सारी चीजें जो पहले भी फॉर्म में थी बट एक लीनियर फॉर्मेट में थी, अब वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेवलप हो गई है। ए से लेके जी तक। जी है अपील फाइलिंग डिटेल्स। तो अब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में बाइफर्केशन कर दिया है फॉर्म का, जिससे कि जो सिमिलर क्लॉजेस है वो ग्रुप टुगेदर हो जाए। तो फॉर्म 99 में जो पहले 1 से लेके 17 तक था फॉर्म 35 में, वो अब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ए से लेके जी के फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब फॉर्म 99 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, वो ये हुआ है कि डिन जो है आपको ऑर्डर का डिन डालना पड़ेगा। और अगर डिन नहीं डाल पाए, सपोजिंगली बिकॉज ऑफ XYZ रीजन डिन नहीं जनरेट हुआ, तो फिर पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और डेट के बेसिस पे डिपार्टमेंट फॉर्म 99 जो है वो फिल आउट कर लेगा। तो जो ऑटो पॉपुलेटेड जो सारी चीजें है वो सारी की सारी टेक केयर हो जाएगी बेस्ड ऑन रो नंबर 8, जिसमें आपकी ये जो डिटेल्स है वो आ जाएगी, और उससे बाकी मेजर डिटेल्स जो है वो फिल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। अब एक इसमें चीज है, वो है कि आपको ये डालना है कि कौन सा टैक्स ईयर है या फिर कौन सा ब्लॉक पीरियड है। ब्लॉक पीरियड आपको कब डालना होगा? ब्लॉक पीरियड आपको तब डालना होगा जब ये एक सर्च का केस हो। अगर कोई सर्च का केस हो तो उस केस में आपको ब्लॉक पीरियड डालना होगा। अगर ये अदर देन सर्च का केस हो, पर्सन अदर देन सर्च, जो पहले 153C का मैटर होते थे, या अभी करंटली 158BC के जो मैटर्स होते हैं, BD के जो मैटर होते हैं, पर्सन अदर देन सर्च पर्सन, अब फाइनेंस एक्ट 2026 में उनमें भी ये हो गया है कि जिस इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो मिला है ये लॉ में आ गया है, जहां जिस ईयर का इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है सिर्फ उसी ईयर की ओपनिंग होगी। तो सिर्फ उसी ईयर का टैक्स ईयर डालना होगा, ये नहीं कि पूरा ब्लॉक पीरियड डाल दिया जो कि पहले होता था। तो पहले वाया कोर्ट जजमेंट से डिपार्टमेंट तो सारा सबको रीओपन करता था, वाया कोर्ट जजमेंट से उनकी क्वेश्चनिंग करके सिर्फ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर को ओपन करते थे। अब वाया लॉ में आ गया है कि जिस ईयर का इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है उसी ईयर की आपकी एडिशन होगी। तो मीनिंग देयर बाय जो ब्लॉक पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ सर्च पर्सन के केस में ही होगा। अब इसमें एक मेरा सजेशन, मेरा अपना ओपिनियन ये था कि काफी जगहों पे टैक्स ईयर एंड ब्लॉक पीरियड दोनों मेंशन है। मेरे हिसाब से देयर शुड बी 2 डिफरेंट फॉर्म्स, बिकॉज सर्च के जो केसेस होते हैं वो हार्डली 1-2% होते हैं, और उस सर्च के लिए जो इन लोगों ने टैक्स ईयर एंड ब्लॉक पीरियड दोनों डाला है, मेरे हिसाब से उसकी रेलेवेंस नहीं थी। आगे भी ब्लॉक पीरियड कई बार मेंशन हो रहा है इस फॉर्म से, इससे सिर्फ ये फॉर्म इलोंगेट हो गया है। बार बार हमें उसमें नो करना पड़ेगा, रादर देन इट वुड बी बेनिफिशियल, क्योंकि 99% केस में सिर्फ टैक्स ईयर ही डालना है, तो इस फॉर्म को इतना इलोंगेट नहीं करते एंड इसका एक डिफरेंट फॉर्म बना देते फॉर ब्लॉक पीरियड पर्पस। बट बिकॉज इनको नंबर ऑफ फॉर्म्स भी कम करने थे तो इन्होंने कंबाइन करा, और पहले जो फॉर्म 35 होता था उसमें कई ब्लॉक पीरियड का जिक्र नहीं होता था।
अब आगे जो चीजें है वो ये है कि मैंने आपको दिखाया कि फॉर्म 99 में पैरा नंबर 1 से लेके 10 तक चीजें ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है। क्या कौन कौन सी होती है ऑटो पॉपुलेटेड? जो रिटर्न फाइल करी है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, जो आपका डिन नंबर है वो सारी चीजें ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, नाम, आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। कुछ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ऑटो पॉपुलेटेड होगी बट वो एडिटेबल है। फॉर एग्जांपल, जो आपने अपील फीस सबमिट करी है 1000 रुपीज की, जो 1000 रुपीज की अपील फीस है वो ऑटो पॉपुलेटेड होगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन वो एडिटेबल रहेगी। तो इसके अंदर सर्टेन ऐसे कॉलम्स इन्होंने डाल दिए हैं जो ऑटो पॉपुलेटेड होंगे लेकिन एडिटेबल है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द टैक्स पेयर्स। और इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, अपील डिटेल्स, इसमें कोई कोई अपील डिटेल ऐसे है कि जैसे ही हम डिन नंबर डालेंगे तो वो सारी की सारी डिटेल जो है वो अपने आप आ जाएगी, वो भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। और उसमें भी आपके पास एक बटन होगा, रेडियो बटन, आप ये कहने के लिए कि ये एप्लीकेबल है, और वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। तो जैसे कि कितनी अनडिस्क्लोज इनकम है, या जितनी भी अगर अदर देन ब्लॉक असेसमेंट है तो उसमें कितनी अनडिस्क्लोज इनकम है, या अगर कोई पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स है तो उसकी कितनी पेनल्टी है, या अगर कोई टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस के से रिगार्डिंग में तो वो कितना है। पुराने वाले फॉर्म 35 में टीडीएस और टीसीएस के बारे में कहीं मेंशन नहीं था। ओल्ड फॉर्म 135 में कहीं भी टीडीएस और टीसीएस के बारे में नहीं था, उसमें सिर्फ असेसमेंट के बारे में था और उसमें अपील के बारे में था। अभी के लिए जो नया फॉर्म है उसमें ब्लॉक पीरियड के बारे में है, या फिर असेसमेंट के बारे में है, या फिर पेनल्टी के बारे में है, या फिर टीडीएस और टीसीएस से रिगार्डिंग में है। तो अभी वाला जो नया नया फॉर्म 99 है ये मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, और इसको सोच समझ के बनाया है, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स क्रॉप अप हो सकते हैं उनको टेक केयर करते हुए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं आपको बताता हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील्स एंड एडिशनल एविडेंस से रिगार्डिंग में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज द हार्ट एंड कोर एरिया फॉर फॉर्म 99। वो क्या एरिया है? वो ये है कि जितने भी ग्राउंड्स ऑफ अपील फाइल हुए हैं, जो भी ग्राउंड्स ऑफ अपील फाइल होंगे, वो ग्राउंड्स शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। तो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। आपको अपने ग्राउंड्स सिंपल रखने, आपको अपने ग्राउंड्स कॉम्प्लिकेटिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं बनाने हैं। सीआईटी अपील्स के रिगार्डिंग में जो ग्राउंड्स होते हैं वो कई कई लोग इतने लंबे बना देते हैं, इतने आर्ग्यूमेंटेटिव बना देते हैं कि ये नहीं पता लगता कि ग्राउंड्स अनडिस्प्यूटेड है कि नहीं है, या उसके अंदर डिस्प्यूट तो अराइज नहीं हो गए विद इन ग्राउंड्स में। तो अब जो नया फॉर्म 99 है वो उसने वर्ड चेक लगा दिया है कि 100 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए ये ग्राउंड, एंड दैट इज अ वेरी गुड चेंज। ये चेंज होना चाहिए था। अब रूल 46A, जो एडिशनल एविडेंस के लिए हम पहले फॉर्म 99 फिल करते, जो फॉर्म 35 फिल करते थे, उसमें बस हम ये बोलते थे कि एडिशनल एविडेंस है कि नहीं है, और उसके बाद रिटर्न सबमिशन के टाइम पे हम एडिशनल एविडेंस देते थे। अब इसमें एक नई चीज आ गई है, रूल 46A जो है वो रूल 192 है नए उसमें। ये मैंने आपको लास्ट टाइम सेमिनार में वेबिनार में बताया था कि रूल एडिशनल एविडेंस जो है वो रूल 192 हो गया है। और अब आपको ये भी मेंशन करना है कि जो एडिशनल एविडेंस है वो आपका कौन से ग्राउंड से कनेक्टेड है, उसकी ग्राउंड के साथ भी लिंकिंग है। पहले हमें ग्राउंड के साथ लिंकिंग नहीं करनी होती थी एडिशनल एविडेंस की, बट अब दे वांट कि आप ग्राउंड के साथ लिंकिंग करिए, सो दैट आगे चल के जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, सीआईटी अपील्स है या जेसीआईटी अपील्स है,
उनके लिए रिलेटिवली सिंपल हो कि एडिशनल एविडेंस कौन से ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है। तो एडिशनल एविडेंस जो है वो ग्राउंड से लिंकिंग आ गई है। अब इसमें एक और चीज आई है ग्राउंड फॉर्म 99 में, वो ये बोलता है कि आपकी रिपीटेटिव अपील्स है कि नहीं है। आपकी सेम फाइनेंशियल ईयर में आपकी रिपीटेटिव अपील्स है कि नहीं है, उसकी आपको एक डिक्लेरेशन देना है, बताना है कि ये है ये नहीं है। पहले होता था कि और डिफरेंट टैक्स ईयर्स में कोई अपील है कि नहीं है, बट अब हो गया है कि इसी सेम ईयर में कोई अपील है कि नहीं है उसकी हमें इंफॉर्मेशन देनी है। ऐसे ही कंडोनेशन ऑफ डिले, अगर 30 डेज के बाद हमारा कंडोनेशन ऑफ डिले हो रहा है तो उसके लिए पहले हमें सिर्फ एक बेसिक डिस्क्लोजर देना होता था कि ये हमारा कंडोनेशन ऑफ डिले है। बट अब वैसी सिचुएशन नहीं है। अब आपको सिर्फ डिस्क्लोजर नहीं देना, अब आपको उसका कंडोनेशन ऑफ डिले फॉर्म 99 फिलअप करते टाइम ही देना है। पहले उसकी कंपल्शन नहीं होती थी, पहले हम रिटर्न सबमिशन के टाइम पर भी दे देते थे वो। अब उसकी अपलोडेशन जो है, अपलोडिंग करना कंडोनेशन ऑफ डिले को, वो कंपल्सरी कर दिया है। जैसे ही 30 डेज के बाद है वैसे ही उसको कंपल्सरी है एक्सप्लेनेशन देना। प्रैक्टिकली जो मैं देख रहा हूं आज की डेट में कि जितने भी, अगर कंडोनेशन ऑफ डिले मोर देन 100 डेज है तो सीआईटी अपील्स ज्यादातर उन केसेस को कंडोन नहीं कर रहा है। पहले ये सिचुएशन, पहले ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, अब ये प्रॉब्लम आने लग गई है कि मोर देन 100 डेज में मैं देख रहा हूं कि सीआईटी अपील कंडोन नहीं कर रहा है, विद इन 100 डेज को वो कंडोन कर देता है। अगर वो कंडोन नहीं करता तो उससे इशू ये आता है कि आपको आईटीएटी जाना पड़ता है और फिर आईटीएटी जाके वो कंडोन हो जाता है। जो मैं देख रहा हूँ दिल्ली आईटीएटी की अगर मैं बात बताऊं तो अगर कोई कोजेंट रीजन नहीं भी है तो भी दिल्ली आईटीएटी 1 साल तक कंडोन कर रहा है, और जब वो कंडोन करता है उसके बाद वो ट्रांसफर बैक कर देता है सीआईटी अपील्स को कि अब आप मेरिट्स पे एडजुडिकेट करिए, आपका कंडोनेशन को अब आपको एडजुडिकेट नहीं करना है। तो मीनिंग देयर बाय जो सीआईटी अपील्स 100 डेज से ऊपर तक के कंडोन कर रहा नहीं कर रहा है, वो एक जो अपील का प्रोसेस है उससे वो इलोंगेट हो रहा है, और इससे कोई ना ही डिपार्टमेंट को ना ही एसएससी को कोई बेनिफिट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो एसएससी का काउंसिल है उसे बेनिफिट हो रहा है। अब एक आता है इम्यूनिटी के बारे में आता है, इसमें इम्यूनिटी कैसे देनी है। इम्यूनिटी के लिए पुराने एक्ट में सेक्शन 270 कैपिटल डबल एक सेक्शन होता था जो कि इम्यूनिटी ग्रांट करता था इन केस टैक्स जो है वो टाइमली पे कर दिया है, विद इन 156 के नोटिस में पे कर दिया है, और उसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं करी है, उस डिमांड के अगेंस्ट में कोई अपील नहीं फाइल करी है, तो इम्यूनिटी ग्रांट होती थी, प्रोवाइडेड कि जो पेनल्टी है वो अंडर रिपोर्टिंग की हो, मिस रिपोर्टिंग की ना हो। बट पहले वाले फॉर्म 35 में हमें कहीं डिक्लेरेशन नहीं देनी होती थी कि हमने इम्यूनिटी नहीं ली है। लेकिन अब सेक्शन 440 है जो सेक्शन 270 कैपिटल डबल ए का मिरर इमेज है, पेरीमेटीरिया है, रीनंबरिंग है प्राइमरली। अब हमें फॉर्म 99 में डिक्लेरेशन देनी है कि हमने 440 की फाइलिंग नहीं करी है। मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली ये डिक्लेरेशन सेंसलेस है, न्यूजलेस है। रीजन बीइंग, जब हम इम्यूनिटी लेते हैं 270 कैपिटल डबल ए में, उस समय हम फॉर्म 68 भरते हैं। फॉर्म 68 भरते हुए हम वहां पे डिक्लेरेशन देते हैं ऑलरेडी कि वी विल नॉट फाइल अपील इन फ्यूचर, वी हैव नॉट फाइल एन अपील एंड वी विल नॉट फाइल अपील इन फ्यूचर। जब ऑलरेडी हमने इम्यूनिटी के टाइम पे डिक्लेरेशन दे दिया तो अगेन वही चीज के लिए डिक्लेरेशन लेना
मेरे हिसाब से सिर्फ फॉर्म को इलोंगेट करना है, इसका कोई मेजर पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। बट एज अ की चेंज अब ये बताना है कि इम्यूनिटी जो है वो हमने नहीं ली है। ये यहाँ पे लिखा है फॉर्म 93 also certified that I have not filed an application for immunity under 440 of the Income Tax Act and no additional evidence other than the evidence stated in Rule 22 above has been filed. I further declare I make a declaration in the capacity as this and that I am committed to make the declaration and verify it. तो ये एक अब इम्यूनिटी की डिक्लेरेशन है वो ऐड हो गई है जो कि पहले नहीं था। तो फॉर्म 99 में जो मेजर चेंजेस आया वो मैंने आपको बताया है। मैं उसको बहुत ही जल्दी से समराइज कर देता हूं। ये जो फॉर्म है इसका पर्पस डिजिटल फाइलिंग का है, इसका पर्पस मैनुअल फाइलिंग का नहीं है। इस फॉर्म को पहले जो लीनियर तरीके से मेंटेन था, अब इस फॉर्म को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में मेंटेन कर दिया है, ए से लेके जी तक। इन फॉर्म में आपको ज्यादातर चीजें जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड मिलेगी। कैसे? बिकॉज हमें ऑलरेडी डिन नंबर डालना होगा या फिर हमें असेसमेंट ईयर और डेट डालना होगा जिससे चीजें ऑटो पॉपुलेटेड होंगी। कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ऑटो पॉपुलेटेड होंगी बट एडिटेबल होंगी, जैसे कि जो आपने टैक्स का चालान भरा होगा, टैक्स अपील का जो चालान भरा होगा, वो वाली चीजें ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड होंगी। जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है उसमें एक बड़ा चेंज आया है, दैट इज अ वेरी गुड चेंज कि नाउ ग्राउंड्स ऑफ अपील शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। और एडिशनल एविडेंस जो है वो अब आपको एडिशनल एविडेंस फॉर्म 99 फिल करते हुए ही डालना है उसकी एक्सप्लेनेशंस के साथ। पहले वो डालने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये डालना होता था कि कंडोनेशन ऑफ डिले है कि नहीं है। इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर अब ये डिक्लेरेशन देनी है कि इम्यूनिटी हमने अवेल नहीं करी है बिफोर फाइलिंग सीआईटी अपील्स, जो मेरे हिसाब से यूजलेस चीज है। बिकॉज ऑलरेडी आप फॉर्म जब इम्यूनिटी ले रहे हैं, फॉर्म 68 है जो पुराने एक्ट में फॉर्म 68 है, उसमें ऑटोमेटिकली आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम इम्यूनिटी कि हम आगे अपील नहीं फाइल करेंगे। एंड देन अगेन उस चीज को क्रॉस वेरीफाई करने का मुझे इतना लॉजिक नहीं समझ आया, या दिस इज वेरी नॉनसेंस स्टेट। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें इस इम्यूनिटी डिक्लेरेशन काम आए। अब हम आते हैं कि आईटीएटी की जो अपील्स होती है, आईटीएटी की जो अपील है उनके फॉर्म्स में क्या डिफरेंस आया है। तो देखिए जो बेसिक डिफरेंस है वो वही है जो फॉर्म 99 एंड 115 में था। जो फॉर्म 99 एंड जो फॉर्म 35 एंड 199 में था कि वो वाला फॉर्म भी डिजिटल पर्पस के लिए, फाइल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। ये 115 भी डिजिटल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। इसमें एक जो अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि एक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उससे उस एक्ट के चेंजेस की वजह से आपको कोई भी जो फीस है वो हमारी नहीं इंक्रीज हुई है। जितनी पहले फीस थी अभी भी उतनी ही फीस है। मैं अगर आपको ब्रीफली बता दूं कि आईटीएटी की फाइलिंग के लिए कितनी फीस होती है, तो उसमें होता है कि जितनी टोटल इनकम असेसिंग ऑफिसर ने डिटरमाइन करता है उस हिसाब से फीस डिटरमाइन होती है। दैट इज द प्राइमरी क्राइटेरिया। अगर असेसिंग ऑफिसर ने इनकम जो डिटरमाइन करी है वो लेस देन 1 लाख है तो 500 रुपीज की फीस होगी। अगर वो लेस देन 2 लाख है, मोर देन 1 लाख है जो असेसिंग ऑफिसर ने डिटरमाइन करी है, वो 1500 होगी। अगर वो मोर देन 2 लाख है तो वो 1% होगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000। और इन सब के बाहर 500 रुपीज होगी। स्टे ऑफ डिमांड एप्लीकेशन डालनी है तो उसके लिए 500 रुपीज होगी। अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन डालनी है तो उसके लिए 500 रुपीज होगी। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल अपील है और आपने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करे हैं
तो उसके लिए आपको कोई अपील फीस पे नहीं करनी। अब अपील फीस प्राइमरीली सेम टू सेम है। इसमें एक जो मेजर चेंजेस आया है वो ये आया है कि जितने जो इसमें टैक्स इफेक्ट देने हैं, जो इसमें ग्राउंड्स डालने हैं, जो इसमें ग्राउंड डालना है, वो ग्राउंड जो सीआईटी अपील में 100 वर्ड्स तक के थे रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे वो 200 वर्ड्स तक के रिस्ट्रिक्टेड है। उनकी रिस्ट्रिक्शन 200 वर्ड्स की है। तो इसमें भी वो सिंपली ये बोल रहे हैं कि ग्राउंड शुड नॉट बी टू लॉन्ग एंड आर्ग्यूमेंटेटिव, ग्राउंड शुड बी शॉर्ट। ये इस तरीके की वर्ड लिमिट की रिस्ट्रिक्शंस पहले वाले फॉर्म 36 में नहीं थी, आप जितनी मर्जी ग्राउंड डाल सकते थे। अब एक ये है कि आपको ग्राउंड जब डालने हैं उसके बाद आपको टैक्स इफेक्ट डालना है। तो टैक्स इफेक्ट कैसे डालेंगे? तो देखिए, टैक्स इफेक्ट आपको सिंपल है कि जितना जितना आपका मेरिट्स पे जितने आपके इशू है, अगर आपने उस इशू के स्पेसिफिक ग्राउंड ले रखा है तो आपको उनके टैक्स इफेक्ट डालने हैं। जितने इश्यूज है, बेटर है, मेरी एडवाइस है कि सब इश्यूज के अलग अलग ग्राउंड्स बनने चाहिए। अगर सब इश्यूज के अलग अलग ग्राउंड्स बनेंगे तो उससे आगे चल के असेसिंग ऑफिसर को अपील इफेक्ट देने में इजी रहता है। कभी ऐसा होता है कि अगर 5 इशू है, असेसिंग ऑफिसर ने डिमांड टोटल निकाल दी 1 करोड़ की, और आपने पांचों इशू एक ही ग्राउंड में डाल के उसका ग्राउंड बना लिया, तो फिर जो जिस भी तरीके से अगर आईटीएटी उसका एडजुडिकेट करेगी, आगे चल के जब अपील इफेक्ट होगा तो फिर आपको फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी, और फिर हो सकता है उसके अगेंस्ट में फिर अपील करनी पड़ जाए जस्ट टू प्रोवाइड एन अपील इफेक्ट। तो आपके ग्राउंड सारे सेपरेट होने चाहिए, हर इशू से रिलेटेड सेपरेट होना चाहिए, और उस इशू का टैक्स इफेक्ट आपको डालना है। अगर आपने कोई लीगल ग्राउंड ले रखा है आईटीएटी में, चाहे वो सीआईटी अपील में भी ले रखा हो, चाहे फॉर्म 99 में ले रखा हो, चाहे 115 में ले रखा है, अगर आपने कोई लीगल ग्राउंड ले रखा है तो फिर आपको टैक्स इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है उसमें। आप टैक्स इफेक्ट 0 डालेंगे उस केस में। हर लीगल ग्राउंड में, हर जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड पे आपको टैक्स इफेक्ट 0 डालना है। आपको जो मेरिट्स पे ग्राउंड है उनके आपको सेपरेट ग्राउंड बनाने हैं, और जितना आपका डिस्प्यूटेड डिमांड है कोशिश करनी है कि सारे के सारे टैक्स इफेक्ट को टोटल करके आपकी डिस्प्यूटेड अमाउंट के इक्विवेलेंट बन जाए। जो अनडिस्प्यूटेड डिमांड है, जो एक्सेप्टेड डिमांड है, उसको साइडलाइन करके सिर्फ डिस्प्यूटेड डिमांड पे ही ग्राउंड्स ऑफ अपील हमें बनाने, और उसका टोटल मैच हो जाए तो अच्छा है, बट मेरे हिसाब से कोई वैलिडेशन चेक नहीं है। तो टैक्स इफेक्ट जो है वो लीगल ग्राउंड में नहीं डालना। सिमिलरली कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन जो है आईटीएटी में, वो 60 डेज के बाद कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन फाइल होती है, और उसकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। वो एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म 115 में फाइल करते हुए सबमिट होगी। एंड एक और चीज है जो इसमें इंपॉर्टेंट, एक अपडेट दी है फॉर्म 115 में, जो फॉर्म 36 में अपडेशन कोई नहीं थी, वो है मिसलेनियस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग में। मिसलेनियस एप्लीकेशन क्या है? पुराने वाले एक्ट में सेक्शन 254 सब सेक्शन 2 के अंदर आता था कि मिसलेनियस एप्लीकेशन ये है कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास हुआ है आईटीएटी का विच इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, अगर ऐसी एरर है तो उसके लिए वो मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करेंगे, मीनिंग देयर बाय एक रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और उस रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन के बेसिस पे वो अपील डिसाइड होगी। इस जगह पे करंटली जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन है उसकी डेट मानी जाती थी फॉर द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंट इसकी डेट होती थी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर से आपकी रेक्टिफिकेशन मानी जाती थी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन।
काउंट करने के लिए। अभी करंटली क्या फॉर्म 115 ने बोला है कि जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन बाय द डिपार्टमेंट, वो काउंट होगी उस डेट से जिस डेट पे पीसीआईटी और सीसीआईटी, जो कंसर्न ऑफिसर का पीसीआईटी और सीसीआईटी है, उसको आईटीएटी का ऑर्डर रिसीव हुआ है, उसको वो सर्व हुआ है। तो जब उसको रिसीव हुआ है उस डेट से 6 मंथ्स काउंट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग मिसलेनियस एप्लीकेशन, रादर देन की डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर से 6 मंथ्स काउंट नहीं होंगे। ये लिखा है नोट नंबर 9 ऑफ फॉर्म 115 में। अब इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास इफेक्टिवली टाइम कम हो रहा है। इसमें बेसिक चीजें ये है कि जो भी पहले एक लीनियर मॉडल था, अब डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स हो गया, जैसा फॉर्म 99 में वैसे ही आईटीएटी के उसमें है। मैं आपको दिखा देता हूं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ। ये इस तरीके से इन्होंने लीनियर तरीके से फॉर्म्स को डिवाइड कर दिया है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जिस तरीके से फॉर्म 99 में यहाँ पे लिखा था कि ये ऑटो अपलोड हो जाएगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, ये एडिटेबल फील्ड है, इस तरीके से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन फॉर्म 115 ने डिपार्टमेंट ने अभी नहीं निकाली है। ये प्रैक्टिकल आने पर ही पता लगेगा कि कितनी कितनी इंफॉर्मेशन प्रीफिल होगी। बस एक नोट नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म वुड बी प्रीफिल टू द एक्सटेंट पॉसिबल। दैट इज द ओनली क्लेरिफिकेशन अभी तक इन्होंने प्रोवाइड करी है। जो इन्होंने फॉर्म 99 में मेंशन कर रखे थे कि यही ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, वो अभी तक नहीं क्लियरली इसमें मेंशन किया है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर अपील जो डिटेल है वो उनको वैसे ही ले लेनी चाहिए जैसे सीआईटी अपील्स में ले रहे हैं। ऑल्दो वहां पे यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड वर्डिंग्स लिखी हुई थी, फॉर्म 115 जो ड्राफ्ट फॉर्म 115 आया है वहां पे इस तरीके की वर्डिंग्स नहीं लिखी हुई है। अब एक ये चीज है कि मैं इसमें भी मेरी सिमिलर रिकमेंडेशन रहेगी जो मेरी पहले उसमें थी, मेरी एकदम सिमिलर रिकमेंडेशन रहेगी। वो ये था कि जो फॉर्म 99 मैं कह रहा हूं कि 2 बनने चाहिए थे फॉर असेसमेंट ईयर, टैक्स ईयर एंड ब्लॉक पीरियड, इसमें भी दोनों बनने चाहिए फॉर टैक्स ईयर एंड ब्लॉक पीरियड, बट वैसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया बिकॉज इनका पर्पस था फॉर्म्स कम करना। इन्होंने ब्लॉक पीरियड का कॉन्सेप्ट इसमें भी डाल दिया है और दोज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर सर्च पर्पसेस, और वो सर्च से इससे ये जो फॉर्म है मेरे हिसाब से ये इलोंगेट हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी ये हर बार ये पूछता है कि ये ब्लॉक पीरियड है, टैक्स पीरियड है, ब्लॉक पीरियड है, टैक्स पीरियड है, और मल्टीपल टाइम्स वो आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। सिमिलरली जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जैसा मैंने आपको सीआईटी अपील्स के लिए बताया, इसमें भी ऐसा है कि सीआईटी अपील्स में सिर्फ असेसमेंट ईयर और पेनल्टी के लिए बात करता है, असेसमेंट एंड पेनल्टी की बात करता है। इसमें 4 चीजों की बात करता है, ब्लॉक असेसमेंट की बात करता है, अदर देन ब्लॉक असेसमेंट, अदर देन ब्लॉक असेसमेंट की बात करता है, पेनल्टी की बात करता है, एंड टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजंस की बात करता है। तो यहाँ पे 4 अमाउंट डिस्प्यूटेड इन अपील्स आ जाते हैं, जो कि सीआईटी अपील में था, सेम टू सेम वही आईटीएटी में आ जाते हैं। वहां पे पहले के जो प्रोविजंस थे, पहले के जो फॉर्म थे, वहां पे सिर्फ 2 कैटेगरीज थी, अब वो 4 कैटेगरीज में फॉर्म बन हो गए हैं। अब मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि जो ग्राउंड्स ऑफ अपील्स है उसमें 200 वर्ड्स की लिमिट डाल दी है। सीआईटी अपील में 100 वर्ड्स की डाल दी है, इसमें 200 वर्ड्स की डाल दी है, और पुराने फॉर्म्स में कोई लिमिट नहीं थी, जितने भी चीज आप डालना चाहो आप डाल सकते हैं। अब इसमें ये है मेजर जो चेंजेस है वो मैंने आपको बताया। एक ये बताया मैंने आपको कि इसमें भी हमें कंडोनेशन ऑफ डिले की जो एप्लीकेशन है वो हमें इसके साथ ही सबमिट करनी पड़ेगी 115 में, जो कि पहले हमें फॉर्म 36 में नहीं फिल करनी होती थी, हमें डायरेक्टली रिटर्न सबमिशन के टाइम पे जाके देनी होती थी। तो प्राइमा फेसाई
जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो सीबीडीटी का स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से फॉर्म बनेंगे, वो काफी सिमिलर है हर हर फील्ड में, हर एवेन्यू में वो सिमिलर है कि कैसे कैसे वो होंगे। ज्यादातर चीजें ऑटो पॉपुलेटेड होगी और कुछ कुछ चीजें जो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हो रही है वो मैं देख रहा हूँ उसको उन्होंने थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया है और उसमें चीजें ज्यादा ऐड हो गई है। तो फॉर्म 115 में आपको ये चेंजेस मैंने बता दिए हैं और इसमें दो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं कि आपका जो चीजें हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड होगी, फॉर्म नंबर 4। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है, जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट का पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब कंप्लीट होगा जब वो पीसीआईटी और सीसीआईटी ऑफ द एसएससी के पास पहुंच जाएगा, जब वो रिसीव हो जाएगा या एसएससी के पास रिसीव होगा तब से वो काउंट होगा। पहले वो डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट से काउंट होता था। और इसमें भी सेम वही है कि जो टैक्स इफेक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू द डिस्प्यूटेड डिमांड। तो ये हमारे फॉर्म 115 में चेंजेस है। अब फॉर्म 116 पे आ जाते हैं, जो फॉर्म 36A, अर्लियर फॉर्म 36A और अभी का फॉर्म 116। मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया कि क्रॉस अपील फाइल कब होती है। क्रॉस अपील फाइल तब होती है जब ऑलरेडी एसएससी सीआईटी अपील से जीत गया है, डिपार्टमेंट अपील फाइल कर रहा है और उसमें वो क्रॉस अपील फाइल कर रहा है, उसमें एसएससी क्रॉस अपील फाइल कर रहा है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल चला जाऊं, अगर मैं थोड़ा इसमें अंदर टेक्निकल घुस जाऊं तो थोड़ा सा मैं इसमें थ्रेडबेयर कर देता हूं चीजें। एक एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी सिचुएशन है कि एसएससी ने अपील फाइल करी सीआईटी पे और उसमें उसने लीगल ग्राउंड डाले कि मेरा 148 जो है एग्जांपल के तौर पे वो बैड इन लॉ है, और उसने मेरिट्स पे ग्राउंड्स करे, मेरिट्स पे वो जीत गया। लेकिन सीआईटी अपील ने या जेसीआईटी अपील ने, नहीं जेसीआईटी तो 148 करेगा ही नहीं, सीआईटी अपील ने जो लीगल ग्राउंड लिया था उसने उसको एडजुडिकेट नहीं किया या उसके अगेंस्ट में कर दिया, बट मेरिट्स पे फेवर में एडजुडिकेट कर दिया, उसको अल्टीमेट रिलीफ मिल गया। नाउ जब आईटीएटी में आप अपील फाइल, जब डिपार्टमेंट आईटीएटी में अपील फाइल करता है फॉर मेरिट्स, तो एसएससी को अगर लीगल ग्राउंड चैलेंज करने हैं तो उसके लिए उसे क्रॉस ऑब्जेक्शन का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उसको क्रॉस ऑब्जेक्शन का फॉर्म भरने की नहीं है जरूरत। ही कैन रिलाई अपॉन रूल 27 ऑफ द आईटीएटी रूल्स, जो कि ये बोलता है कि अगर कोई भी ग्राउंड हैज बीन एडजुडिकेटेड अगेंस्ट एसएससी इन सीआईटी अपील, कोई ऐसा ग्राउंड है जो एडजुडिकेटेड अगेंस्ट एसएससी, अगेंस्ट द सीआईटी अपील, अगेंस्ट एसएससी बाय द सीआईटी अपील, तो वो रिस्पोंडेंट उठा सकता है आईटीएटी में विदाउट फाइलिंग क्रॉस ऑब्जेक्शंस। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राउंड है जो लीगल ग्राउंड है, जो एसएससी ने सीआईटी अपील में लिया ही नहीं, सीआईटी अपील ने उसको एडजुडिकेट ही नहीं किया और उस मेरिट्स पे वो जीत गया और अब डिपार्टमेंट अपील फाइल कर रहा है, डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करी और अब वो लीगल ग्राउंड लेना चाहता है, एज अ रिस्पोंडेंट वो लीगल ग्राउंड लेना चाहता है, तो ही कैन टेक दैट लीगल ग्राउंड बाय फाइलिंग फॉर्म 116 नए नए रूल्स के हिसाब से। सिमिलर इसका पूरा मैंने स्ट्रक्चर देखा, एकदम सिमिलर है। जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में इसमें डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए से लेके पार्ट ई तक इन्होंने डिवाइड कर रखा है, कोई चेंजेस नहीं है, वही वही सेम चेंजेस है कि क्रॉस ऑब्जेक्शन ब्लॉक पीरियड का है, असेसमेंट का है, पेनल्टी का है, टीडीएस टीसीएस का है। ज्यादातर चीजें इसमें ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगी। जब हम सीआईटी अपील का डिन नंबर और उसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे वहां से वो चीजें ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें इसमें जो ग्राउंड्स है
उसमें ग्राउंड्स में वर्ड लिमिट नहीं है। बाकी दोनों में उन्होंने वर्ड लिमिट डाली है, बट क्रॉस ऑब्जेक्शंस के फॉर्म में डिपार्टमेंट ने वर्ड लिमिट नहीं डाली है, टैक्स इफेक्ट डाला है। और टैक्स इफेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? टैक्स इफेक्ट इस चीज में, उस चीज में कैलकुलेट होगा कि अगर सीआईटी अपील ने एसएससी को पार्शियल रिलीफ दे दिया है, तो जितना रिलीफ नहीं दिया है, जो जो रिलीफ उसे कंटेस्ट करना है, उस रिलीफ के लिए वो क्रॉस ऑब्जेक्शन में टैक्स इफेक्ट डाल सकता है। और जो डिपार्टमेंट है, जो उसके अगेंस्ट में गया था, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में जितना रिलीफ एसएससी को मिल गया था सीआईटी अपील में, डिपार्टमेंट उन चीजों को अगर डिस्प्यूट करना चाहता है तो वो उसका टैक्स इफेक्ट डालेगा। तो जो अगर सीआईटी अपील्स में जितना टोटल टैक्स इफेक्ट था, अगर पार्शियल रिलीफ मिला है और वो सारा वो डिस्प्यूट कर रहा है, तो इन दोनों का जो आईटीएटी में डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा उसका टैक्स इफेक्ट, प्लस क्रॉस ऑब्जेक्शन जो एसएससी फाइल करेगा उसका टैक्स इफेक्ट, ये दोनों का टैक्स इफेक्ट जो है दैट शुड कंबाइन विद द टैक्स इफेक्ट विच इज फाइल इन फॉर्म 99। ये कई लॉ नहीं है, बट दिस इज प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू कि इस तरीके से आप अपनी चीजों को रिकंसाइल कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी क्रॉस ऑब्जेक्शन का जो फॉर्म है वो बहुत सिंपल है, उसमें ज्यादा चीजें नहीं है, बट बिल्कुल सिमिलर तरीके से फॉर्म फाइल होगा जैसे फॉर्म 99 एंड फॉर्म 115 फाइल हुआ है, और इसमें कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं है। अब मैं इसमें एक छोटी सी एक चीज बताना चाहता हूं अपने बारे में कि आई एम अ टैक्स एडवोकेट, और मेरी जो प्रैक्टिस है एज अ टैक्स एडवोकेट वो सिर्फ लिटिगेशन रिलेटेड प्रैक्टिस है। आई स्पेशलाइज इन लिटिगेशन, और मैं बी टू बी क्लाइंट्स को ही हैंडल करता हूँ, मीनिंग देयर बाय कि मेरे पास ज्यादातर टैक्स प्रोफेशनल्स आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, और उनकी जो लिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में मैं उनको गाइड करता हूँ और अल्टीमेट क्लाइंट को रिलीफ दिलाता हूँ। तो मैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना प्रायर एक्सपीरियंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देख के, वो ये है कि वो दे आर वेरी गुड इन मेरिट। जो भी केस आता है उनके पास, चाहे वो इनकम टैक्स का हो चाहे वो जीएसटी का हो, मैं जीएसटी केसेस भी हैंडल करता हूँ, तो चाहे वो कोई भी बोगस परचेज का केस हो, चाहे 73 74 कुछ भी हो, दे आर वेरी गुड इन मेरिट। उनके पास डॉक्यूमेंटेशन, उनको पता होता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, क्लाइंट कितने डॉक्यूमेंटेशन ला पा रहा है, वो डॉक्यूमेंटेशन अरेंज भी कर देते हैं, उनको पता है मिनट्स में कैसे खत्म करना है केस को। बट काफी बारी ऐसे होते हैं, ज्यादातर ऐसे केस होते हैं जो टेक्निकल चीजों पे निकल जाते हैं कि क्या इस असेसिंग ऑफिसर की ये पावर थी, ये अथॉरिटी थी ये नोटिस इशू करने के लिए, क्या उसने सीबीडीटी सर्कुलर्स को फॉलो करते हुए डिमांड इंपोज करी है कि नहीं करी है। तो जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें रिलेटिवली मैंने देखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर समवट दे नीड गाइडेंस, तो वो गाइडेंस मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोवाइड करता हूं। और मैं आप सब लोगों से ये अपील करता हूं कि इस फोरम के थ्रू कि अगर आप लोगों की कोई भी आपको टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए फॉर एनी इनकम टैक्स और जीएसटी केस, तो आई एम देयर। आप मेरे से एज अ सेकेंड ओपिनियन लीजिए एंड विल असिस्ट यू एंड विल गाइड यू कि हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड क्रिएट सिनर्जी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लाइंट। और मेरा होल एंड सोल पर्पस ये रहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेल्थ मैक्सिमाइज करके दूं। सो दैट इज इट, एंड माय रिक्वेस्ट इज कि अगर आपको कोई भी इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप प्लीज मेरे को मैसेज कीजिए। मैं अपना नंबर जो है वो चैट में दे देता हूं, एंड इवेंचुअली आपको कोई भी अदर रिक्वायरमेंट हो किसी अदर केस से रिलेटेड, तो आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सी एडवोकेट शिखर गर्ग जी। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, हाँ जी आ रही सर, है। आपकी आवाज आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच सी एडवोकेट शिखर गर्ग जी
for such a wonderful and insightful session. You explained a complex subject like the new income tax rules in such a simple, practical, and easy to understand manner that it became very useful for all the professionals present today. Your practical insight on appeals, forms, and structural changes will definitely help professionals in their day to day practice and litigation work. I would also once again like to sincerely thank Sri Dr. Raj Chawla ji for organizing this informative session and creating such a valuable learning platform for professionals. On behalf of all the participants, I extend my heartfelt thanks to the speaker, the organizer, and all the attendees. Thank you everyone for joining us today. Have a wonderful evening. Thank you. Thank you very much. Thank you.